Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is related to our previous topic, that is the comparison between the properties of ionic and the covalent compounds. After studying the complete concept about the ionic and the covalent bonds, the next topic is about the properties, about the comparison between the properties of the ionic and the covalent compounds. So before studying the comparison between the properties of the ionic and the covalent compounds, we must know about the ionic compounds and the covalent compounds. So the ionic compounds, in simple way, ionic compounds are those compounds which contain ionic bond, and the covalent compounds are those compounds which contain covalent bond. As you know that the ionic bond is formed due to the transfer of electron, while the covalent bond is formed due to the mutual sharing of electrons. So their properties is also related about their bonds definitions, about their ionic bond definitions and the covalent bond definitions. Like in case of ionic compounds, in ionic compounds oppositely charged ions बनते ही कब है, जब एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा ले रहा है. मींस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में हमारे पास हमेशा दो ऑपोजिटली चार्ज्ड एटम्स या आयंस बन रहे थे, मीन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस. So in case of ionic compound, these oppositely charged ions, means plus and negative, are properly arranged. They are arranged in a specific pattern to give a structure. That structure is known as the crystalline structure. Mean their shape is like a crystal, like the NaCl. Like in case of NaCl, that is also known as the table salt, which is present in our kitchen, is also a crystal, is also a crystalline structure. As a whole, the compound is neutral, and overall the compound is neutral. Why the compound is neutral? Because the positive and the negative charged ions are always equal to each other. There exists a strong electrostatic force of attraction between their ions. As you already know, in ionic bond, like in case of NaCl, Na has positive charged and Cl has negative charge. So the force of attraction that is present between two charges is known as the electrostatic force. Electro means charges. So the force which is present between the charges is known as the electrostatic force of attraction, and that force is known as the ionic bond. While in case of covalent compounds, the covalent compounds mostly exist as discrete neutral molecules. Covalent compounds are always mostly present in the form of neutral molecules. There exists a strong electrostatic force of attraction. There is also a strong electrostatic force of attraction, but that force of attraction is due to the between the nuclei and the shared electrons. जैसे कि हमने प्रीवियस देखा आयनिक बॉन्ड के अंदर, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, कि सपोज हमारे पास एक एटम है जो कि शेयरिंग कर रहा है, और सेमी सिद्धांत यहाँ पे भी एक एटम है और वो भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. अब ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये दोनों शेयर कर रहे हैं इस तरह से. अब जब ये शेयर कर रहे हैं, अब इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है अपने इस इलेक्ट्रॉन की तरफ, सेम इस तरह से इस न्यूक्लियस की भी अट्रैक्शन है अपने इस इलेक्ट्रॉन की तरफ. अब जब ये शेयरिंग करते हैं तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हुए हैं, इन दोनों को, दोनों एटम की जो न्यूक्लियस है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, बॉन्ड कर रहे हैं, फोर्सली पकड़ा हुआ है उन्होंने एक दूसरे को. तो इनकी वजह से इनके दरमियान जो फोर्स क्रिएट हो रही है, जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है, उसको हमने किस चीज का नेम दिया था, कोवलेंट बॉन्ड का. सो तो कोवलेंट कंपाउंड के अंदर वो वही वाला कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है और उसी की ही बॉन्डिंग को दोबारा से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है. नेक्स्ट हमारे पास है कि इनकी सॉल्युबिलिटी. ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी. अब सॉल्युबिलिटी इन सिंपल हमारे पास होता क्या है, जब भी हम किसी चीज को सॉल्युबल करते हैं, किसी दूसरी चीज के अंदर डाल के उसको डिसॉल्व करवाते हैं, मिक्स करवाते हैं, लाइक जैसे हमने वाटर के अंदर NaCl डाल दिया और उसको मिक्स किया तो वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है. सेम इसी तरह से अगर हमने वाटर के अंदर शुगर ऐड कर दिया, उसको स्टीयर किया, उसको मिक्स किया तो वो मिक्स हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है उसके अंदर. तो इनकी सॉल्युबिलिटी किस आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी किस चीज के अंदर है और कोवलेंट कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी किसके अंदर है. तो सॉल्युबिलिटी का एक सिंपल सा रूल होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक. जो जैसा होता है वो उसी के अंदर ही डिसॉल्व होता है. अब जैसे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हम देखा है कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, उनके ऊपर चार्जेस होते हैं, मींस दे आर पोलर. सो आयनिक कंपाउंड जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, और वाटर भी हमारे पास एक पोलर सॉल्वेंट है. तो
आयनिक कंपाउंड्स किसके अंदर सॉल्युबल है? पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। क्यों पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व है? क्योंकि वो खुद भी पोलर है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास कैसे हैं? पोलर है। जैसे कि हमने देखा कि आयनिक कंपाउंड कैसे बन रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान बन रहा है ना। चार्जेस हमारे पास क्या होते हैं? पोलैरिटी से निकला हुआ है। तो आयनिक कंपाउंड्स पोलर होने की वजह से पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर रिजॉल्व हो रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें कोवलेंट कंपाउंड्स की, दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल क्यों है? क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड्स कैसे होते हैं? नॉन पोलर। कोवलेंट कंपाउंड्स में हमने देखा कि हमारे पास दोनों तरह के होते हैं, पोलर भी हैं और नॉन पोलर भी हैं। अब इसी वजह से यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया? यूजुअली। अब ये यूजुअली का वर्ड उन कंपाउंड्स के लिए यूज किया गया है जो कि कैसे हैं? नॉन पोलर है। वाटर हमारे पास पोलर है ना, तो यूजुअली का वर्ड यूज हो रहा है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए। तो जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हैं बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, लेकिन वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल है, जैसे कि हमारे पास ईथर है, बेंजीन है, एसीटोन है। नेक्स्ट इनकी है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ रहा है। आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड्स, जैसे कि हमने क्या देखा? NaCl देखा, कैल्शियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड, बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो कि क्या किसकी? आयनिक कंपाउंड्स की। और ये हमारे पास कैसे होती हैं? सॉलिड्स, सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। अब सॉलिड है हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये वाली बात हम ऑलरेडी ही आयनिक कंपाउंड के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। लाइक NaCl को अगर हम किचन के अंदर मेल्ट करवाना चाहें, होप सो कि ये मेल्ट हो भी जाए, बट इसको क्या हम बॉयल करवा सकते हैं? नहीं। इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl इज 801 डिग्री सेल्सियस। और हमारे किचन का नॉर्मली टेम्परेचर कितना जाता है? 150। मोस्ट of the cases बस 150 because it is difficult to break the strong electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions। और ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू द कोवलेंट बॉन्ड। क्यों स्ट्रॉन्गर है? क्योंकि उसमें क्या ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं, प्लस और माइनस चार्जेस आ रहे हैं, उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जबकि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है ना, तो वहां पे न्यूक्लियस की अपनी इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्शन है, और वो ड्यू टू वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी स्ट्रॉन्ग हमारे पास आयनिक बॉन्ड के अंदर होती है। सेम इसी वजह से हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग होता है। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली होता यही है कि हमने उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है ना, एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हमने ब्रेक करना होता है। जब हम उस एटम के दरमियान का बॉन्ड ब्रेक करते हैं तभी वो एटम मेल्ट या बॉयल होना स्टार्ट होता है। तो इसी वजह से हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। क्यों हाई है? बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। नेक्स्ट हमारे पास है कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो हमेशा 2 मेटल्स या फिर दो से ज्यादा नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। अब जैसे जैसे कोवलेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाता है तो क्या होता है? वो गैसेस और फिर लो बॉइलिंग लिक्विड्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। जैसे 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 उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसी वैसी उनकी डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है, उससे ज्यादा डेंसिटी होती है लिक्विड्स की, और फिर उससे ज्यादा डेंसिटी होती है सॉलिड्स की। तो इसी तरह से जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला जाता है, ये क्या होती है? गैसेस से लो बॉइलिंग लिक्विड्स के अंदर, फिर लो बॉइलिंग लिक्विड्स से लिक्विड्स, हाई बॉइलिंग लिक्विड्स के अंदर, फिर वहां से वो लेस विस्कस से सॉलिड्स के अंदर, वैक्सी सॉलिड्स के अंदर, और फिर ये सॉलिड्स के अंदर चेंज होते चले जाते हैं। इनकी विस्कोसिटी या इनकी हम डेंसिटी कह सकते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला जाता है। हाई मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, ये वही वाली बात होगी। जनरली दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, नॉर्मली इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं। नेक्स्ट है इनकी कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी हमारे पास 2 चीजों में होती है, या तो वो हीट कंडक्टर होते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं। दे आर यूजुअली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और इन सॉल्यूशन फॉर्म। मोल्टन क्या होता है? मेल्ट की हुई फॉर्म। लाइक NaCl है, उसको एज इट ही अगर आप किसी टेबल के ऊपर रखें और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएं तो जिस साइड के ऊपर आपने इलेक्ट्रिसिटी डाली होगी वो बस वहीं पे ही रहेगा। नेक्स्ट उसकी जो ऑपोजिट साइड है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है, उसके अंदर की जो केटाइंस और एनाइंस है उन्होंने एक दूसरे को इतना अरेंज किया हुआ है एक दूसरे के साथ कि वो अपनी पोजीशन को मूव ही नहीं कर पा रहे हैं। जब अपनी पोजीशन को मूव ही नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा कि वो करंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके ही नहीं जा सकते हैं।
जब हम उनको मोल्टन फॉर्म में ले आते हैं, मोल्टन मतलब उनको मेल्ट कर लेते हैं, तो क्या होता है कि उनके दरमियान की जो बॉन्ड होता है उसको हमने ब्रेक कर दिया होता है। अब वो लूजली अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ ही। तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी इनको देते हैं, अब लूजली अटैच है तो इसका मतलब है कि वो लूजली मूव भी कर सकते हैं ना, फ्रीली मूव भी कर सकती हैं। तो जैसे ही हम अब मोल्टन फॉर्म के अंदर करंट को पास करवाएंगे तो क्या होगा कि वो एक स्टेट से एक साइड से दूसरी साइड की तरफ भी मूव कर सकते हैं। जैसे वाटर के अंदर हम एग्जांपल लगा देते हैं, वाटर के अंदर अगर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है हमारे पास और उसके अंदर हम वाटर के अंदर एक साइड के ऊपर वायर डाल दें इलेक्ट्रिसिटी की, तो क्या होगा कि एक कॉर्नर पे हमने करंट प्रोवाइड किया और जो नेक्स्ट कॉर्नर होगा उसके ऊपर भी